Hello everyone, welcome to channel. Let's start biomolecule. This first paragraph is not of that use. Let's start from how to analyze chemical composition. We can continue asking in the same way what type of organic compounds are found in the living organisms. How does one go about finding the answer? To get an answer, one has to perform a chemical analysis. We can take any living tissue, a vegetable, or a piece of liver, and grind it in a trichloroacetic acid using a mortar and a pestle. We obtain a thick slurry. If we were to strain this through a cheesecloth or cotton, we would obtain two fractions. One is called filtrate and more technically the acid soluble pool, and the second retentate or acid insoluble fraction. Acid soluble and acid insoluble fraction. Scientists have found thousands of organic compounds in acid soluble pool. All carbon compounds that we get from living tissue can be called biomolecules. Amino acids are organic compounds containing an amino group and an acidic group as substituents on the same carbon, that is alpha carbon, called alpha amino acid. They are substituted methanes. There are four substituent group occupying four valency position. These are hydrogen, carboxyl group, amino group, and a variable designated as R group. However, those which occur in protein are only of 20 type. R group is in these proteinaceous amino acid could be hydrogen amino acid called glycine, methyl group alanine, hydroxyl methyl serine. 3 of 20 are shown in figure this. इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सच कुछ नहीं लिखा है, हम लोग को नोट्स में लिखना हो. आगे आते हैं. The chemical properties of the amino acid are essentially of the amino carboxyl and the R functional groups. Based on the number of amino and carboxyl group, there are acidic, glutamic, basic lysine, neutral valine amino acids. This is important. Some aromatic tyrosine, phenylalanine, tryptophan. A particular property of amino acid is the ionizable nature of NH2COOH groups. Hence, in solution of different pH, structure of amino acid changes. Like you can see here, in this structure we have CHR, COOH, and H3 plus. In this structure we have R, RCH, NH3 plus, COO minus, right? And in this one we have CHR, NH2, COO minus. एक H यहाँ से हटाया, फिर एक H यहाँ से हटाया, राइट? और इसको हम लोग कहेंगे ज्विटर आयन. Let's make notes. पहला है R group in these proteinaceous amino acids would be
हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन जोड़ दिए तो उस अमीनो एसिड को हम लोग कहेंगे ग्लाइसीन। और अगर मिथिल ग्रुप जोड़ेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे एलेनाइन। अगर हाइड्रोक्सी मिथिल जोड़ेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे सेरीन। फिर कह रहे हैं जो केमिकल जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है अमीनो एसिड की, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है अमीनो एसिड की, वो वो एसेंशियली होती है अमीनो ग्रुप की, कार्बोक्सिल ग्रुप की और आर फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है। फिर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, हमको मिलेगा पहला एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में लाइसीन और न्यूट्रल में वेलाइन। एरोमेटिक अमीनो एसिड तीन टाइप के मिलेंगे, टायरोसिन, फेनिलएलेनिन ट्रिप्टोफैन। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी of amino acid is ionizable nature of ionizable nature of NH2
and COOH groups. Hence, the solution of different pH, the structure of, hence pH is directly proportional to structure of amino acids. फिर देखते हैं ड्यूटेनाइन का डायग्राम स्ट्रक्चर। NH3 CHR COH, इस पे प्लस का साइन है, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। फिर ये NH3 प्लस किसी का इलेक्ट्रॉन दिया, और ये COO माइनस मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लिया। फिर इसी को हम लोग कहेंगे ड्यूटेनाइन। फिर NH2 CHR COO माइनस। ठीक है, जो लिपिड्स होते हैं वो जनरली वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। ये सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं। जो फैटी एसिड होता है उसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि आर ग्रुप से अटैच्ड होता है। जो आर ग्रुप होता है वो या तो मिथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, या फिर उनसे ज़्यादा भी हो सकता है, जिसमें कार्बन का नंबर 1 से लेकर 19 तक रेंज करे। जैसे जो पामीटिक एसिड है उसके पास 16 कार्बन है और कार्बोक्सिलिक कार्बन है। जो एरा काइडोनिक एसिड है उसके पास 20 कार्बन है, इसके पास कार्बोक्सिल कार्बन भी है। जो फैटी एसिड है ये सैचुरेटेड होता है, मतलब सैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड होता है मतलब कि एक या एक से ज्यादा। जो फैटी एसिड होता है वो सैचुरेटेड होता है, मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड रहते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब इसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रहते हैं। जो सबसे सिंपल लिपिड है उसका नाम है ग्लिसरॉल, जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी इसको कहते हैं। लिपिड्स के पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स दोनों होते हैं। जो फैटी एसिड होता है वो ये एस्टरिफाइड पाए जाते हैं ग्लिसरॉल के साथ। ये मोनोग्लिसराइड मतलब मोनो मतलब एक भी हो सकते हैं, डाई मतलब दो भी हो सकते हैं, ट्राई मतलब तीन भी हो सकते हैं। इनको हम लोग फैट या ऑयल कहते हैं। फैट या ऑयल डिपेंड करता है उनकी मेल्टिंग पॉइंट पे। मतलब फैट और ऑयल के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट से बताएंगे कि वो ग्लिसरॉइड फैट है या ऑयल है। ठीक है, कुछ लिपिड्स के पास फॉस्फोरस होता है और फॉस्फोराइलेटेड
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम लोग फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। लेसेथिन जो होता है उसका एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का। कुछ टिश्यू जैसे कि न्यूरल टिश्यू है, इनके पास लिपिड होता है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग में पाए जाते हैं। हेट्रो मतलब जिनमें सेम ना हो के अलग अलग एटम्स जुड़े हों। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन बेस हो गया, नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन। ठीक है, इनको हम लोग जब अगर ये लोग शुगर के साथ पाए जाते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और अगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ पाए जाते हैं एस्टेरिफाइड शुगर के साथ, तो हम लोग वो कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जो एडिनोसिन, ग्वाइनोसिन, थाइमिडीन, न्यूरेडीन, साइटिडीन है, ये हम लोग के न्यूक्लियोसाइड हैं। एडेनिलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, इनको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो डीएनए और आरएनए, जैसे कि फिर न्यूक्लिक एसिड्स like DNA, RNA consist of nucleotides only। जो DNA और RNA होता है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। ठीक है, चलो लेट्स मेक नोट्स। जो लिपिड होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, ये सिंपल फैटी एसिड्स भी होते हैं। जो फैटी एसिड्स होते हैं इनके पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि आर ग्रुप से अटैच्ड होता है। जो आर ग्रुप होता है वो मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है। ठीक है, फिर एक इसका एग्जाम्पल है पामेटिक एसिड। इनके पास 16 कार्बन होते हैं। फिर जैसे हो गया हमारे पास एराकाइडोन, एराकाइडोनिक एसिड, इनके पास 20 कार्बन हो सकते हैं कार्बोक्सिल कार्बन मिला के, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, फिर फैटी एसिड्स जो होते हैं वो या तो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड मतलब जिनके पास सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड होते हैं मतलब कि जिनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ग्रुप में या कंपाउंड में। ठीक है, फिर एक सिंपल सिंपल लिपिड है जिसका नाम है ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल है उसको हम लोग कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। कई
कई लिपिड्स होते हैं जिनके पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स दोनों होते हैं। जो फैटी एसिड्स होते हैं ये एस्टेरिफाइड होते हैं, एस्टेरिफाइड होते हैं ग्लिसरॉल के साथ। ये मोनो हो सकते हैं, डाई हो सकते हैं, ट्राई हो सकते हैं। ठीक है। फिर कुछ लिपिड्स जिनके पास फास्फोरस भी होता है और लिपिड्स जिनके पास फास्फोरस होता है, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। विद लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जैसे कि लेसिथिन। लेसिथिन। ठीक। कुछ टिश्यूज जैसे स्पेशली न्यूरल टिश्यूज इनके पास भी लिपिड होता है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस वाले नाइट्रोजन बेस वाले हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। ठीक है। अगर ये पाया जाता है अटैच टू शुगर तो इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। और अगर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। साइड्स। एडिनोसिन,
guanosine, thymidine, uridine, cytidine. ठीक है, फिर अब आता हमारा न्यूक्लियोटाइड्स। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है जैसे डीएनए और आरएनए, ये सिर्फ बनता है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। ठीक है, फिर अब हम लोग आते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम। अगर एनटीए चाहे तो इससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। फिर आता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 क्वेश्चन तो मस्ट है। दिस टेबल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का आएंगे 2-3 क्वेश्चन। चलो पहले टेबल्स तैयार कर लेते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज। पहला आता है पिगमेंट। पिगमेंट में कौन कौन आएगा? कैरोटीनॉइड्स और एंथोसायनिन्स। एल्केलॉइड्स में कौन कौन आएंगे? मॉर्फिन और कोडीन। टेरपेनॉइड्स में आएंगे
मोनो टर्पी और डाई टर्पीन्स। एसेंशियल्स एसेंशियल ऑयल्स में आएंगे लेमन ग्रास ऑयल। ठीक है, फिर टॉक्सिन्स में आएंगे एब्रिन और राइसिन। लेक्टिन्स में आएंगे लेक्टिन्स में आएंगे कॉन कैन नेवेलिन कॉन कैनेवेलिन ए। ड्रग्स में आएंगे विन ब्लास्टिन और क्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में आएंगे रबर्स, gums and cellulose। फिर आएगा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure and, if possible, synthesizing them. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acid, glucose, sugar, etc. For reasons that are given in section 9.10, we can call these biomolecule metabolites. In animal tissues, one notices the presence of all such categories of compounds shown in figure 9.1. These are called primary metabolites. 9.1. These are called primary metabolites. However, one analyzed plant, fungal, and microbial cell, one would see thousands of compounds other than these called primary metabolites: alkaloid, flavonoid, rubber, essential oil, antibiotics, color pigments, scents, gums, spices. These are secondary metabolites. Let's make notes.
secondary metabolites. Alkaloids, flavonoids, rubber, rubber, essential oil, antibiotics, colored pigments, scents, gums, spices. Hmm? While primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological process, we do not at the moment understand the role or function of all the secondary metabolites in host organisms. However, many of them are useful to human welfare. Some secondary metabolites have ecological importance in the later chapter. And yes, you will learn more about this. Now comes bio macromolecules. Macro means big. Let's make this table first. Now comes biomacromolecules. There is one feature common to all compounds found in the acid soluble pool. They have molecular weight ranging from 18 to 800 Dalton approximately. Acid insoluble fraction has only four types of organic compounds, that is protein, nucleic acid, polysaccharide and lipids. We'll make notes along with the along with grading. Acid soluble fraction has only four organic compounds. Four organic compounds. कौन कौन से? Proteins, nucleic acid,
polysaccharides, lipids. These classes of compound, with the exception of lipid, have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. Molecular weight of 10,000 range or above. For this reason, biomolecules, that is chemical compounds found in living organisms, are of two types. One, those who have molecular weight less than 1000 Dalton and are usually referred to as micromolecules or simply biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fraction are micromolecules or biomicromolecules. The molecule in the acid in the insoluble fraction, with the exception of lipid, are polymeric substances. The molecules in the insoluble fraction, with the exception of lipid, are polymeric substances. ये तीनों polymeric substances कहेंगे इनको हम लोग. Then, why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction? Lipids are indeed small molecular weight compounds and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membrane. ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में. इसमें एसिड insoluble अब आगे आते हैं. एसिड सॉल्युबल पूल को हम लोग साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन भी कह सकते हैं. जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल से जो मिलके बनता है वो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शंस को कहते हैं और ये टुगेदर रिप्रेजेंट करते हैं एंटायर केमिकल कंपोजिशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म या टिश्यू के. ठीक है, अब आगे आते हैं. अब पता है प्रोटीन. लेट्स मेक दिस टेबल फर्स्ट. पहले आता है हम लोग का कोलेजन. इसके एग्जाम्पल्स इंटर सेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस. फिर आता है ट्रिप्सिन. इसका फंक्शन होगा ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है एंजाइम. ट्रिप्सिन प्रोटीन का फंक्शन होता है एंजाइम. इंसुलिन
Insulin is a hormone. It is a hormone. Antibody. Fight infectious agents. Receptor. Sensory reception. फिर GLUT4. Enables glucose transport into the cell. अब आता हमारा प्रोटीन। प्रोटीन होता है हमारा पॉलीपेप्टाइड। ये लीनियर चेन होता है अमीनो एसिड के आपस में जुड़े होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। जो प्रोटीन होता है वो पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का। 20 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं। एलेनिन, साइटाइन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा। जो प्रोटीन होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर नहीं होता है। होमोपॉलीमर केवल एक टाइप के मोनोमर्स मतलब रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना होता है। और जो डाइटरी प्रोटीन होती है वो सोर्स है एसेंशियल अमीनो एसिड का। जो अमीनो एसिड होते हैं वो एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों होते हैं। जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी बनाती है। मतलब कि जो जो चीज़ हम लोग खाते हैं उस चीज़ से। जो प्रोटीन होता है वो कई फंक्शन उसके पास होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना क्रॉस मेम्ब्रेन, और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करना, और कुछ हार्मोन, कुछ एंजाइम्स एक्सेट्रा। जो कोलाजन होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होते हैं एनिमल वर्ल्ड में। और जो राइबोलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस रूबिस्को होता है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है ऑल ओवर बायोस्फीयर में। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेट्स मेक नोट। जो प्रोटीन होता है वो पॉलीपेप्टाइड होता है। पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है। हर प्रोटीन पॉलीमर होता है। हर प्रोटीन पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का। बीस तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं। एलेनिन, साइटीन,
प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन इसके एग्जाम्पल हैं। जो प्रोटीन होता है वो होमोपॉलीमर होता है। जो प्रोटीन जो प्रोटीन होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर नहीं होता है। ठीक है। होमोपॉलीमर मतलब एक मतलब वन टाइप ऑफ मोनोमर एक ही रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ। फिर जो डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं वो सोर्स होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों हो सकते हैं। फिर अब इधर आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोलेजन जो होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होते हैं, एनिमल वर्ल्ड में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में। और pellets has also polysaccharides, carbohydrates, as another class of macromolecules. Polysaccharides are long chain of sugars. They are thread-like, literally cotton threads containing different monosaccharides as building blocks. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, that is glucose. Cellulose is homopolymer. Starch is a variant of this, present as a storehouse energy in plants. Animals have another variant called glycogen. Insulin is a polymer of fructose. Polysaccharide chain say glycogen. Right end is reducing and left end is non-reducing. Starch form helical secondary structure. Starch can hold I2 molecule in the helical portion. Starch I2 is blue in color. Cellulose do not contain complex helices and cannot hold I2. Plant cell wall made of cellulose. Paper made from plant pulp and cotton fiber is cellulosic. There are more complex polysaccharide in nature. They have building blocks, amino sugars, and chemically modified sugars. Example: glucosamine and acetyl galactosamine. Exoskeleton of arthropod, for example, have a complex polysaccharides called chitin. These complex polysaccharides are mostly homopolymers. Let's mark important points. Let's make notes.
These are long chain of sugars. These are threads, literally like cotton threads, containing different kinds of monosaccharides. For example, cellulose. It is a polymeric polysaccharides consist of only one type of monosaccharides, that is glucose. Cellulose is a homopolymer. Now coming to starch. Starch is a variant of this but present as a store of present as a storehouse of energy in plants. Now coming to insulin. It is a polymer of fructose. In polysaccharide chains, glycogen right hand side is a reducing end. Left hand side is a non-reducing end. Now coming to starch. It is a form of helical secondary structure. It can hold I2 molecules in helical position. Starch I2 is a blue color. Cellulose does not contain complex helices and hence cannot contain I2.
Plant cell wall are made of cellulose. Paper made from plant pulp. And cotton fiber is cellulosic. Other type of macromolecules that one would find in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid. These are polynucleotides together with polysaccharides and polypeptides. These comprises two macromolecule fraction of any living tissue or cell. For nucleic acid, the building block is nucleotide. ए मम्मा चला गया पूरी फाइल सक्सेसफुल है. Nucleotide has three chemically distinct components. One is heterocyclic compound, second is monosaccharide, and third is polyphoric acid or phosphate. The heterocyclic compound in nucleic acid are the nitrogenous base named adenine, guanine, uracil, cytosine, thymine. Adenine and guanine are substituent purines, while the rest are substituted pyrimidines. Skeletal heterocyclic ring is called as purine, pyrimidine respectively. Sugar found in polynucleotides is either ribose or 2-deoxyribose. Nucleic acid contain deoxyribose is DNA, containing ribose is RNA. Let's make notes and mark important points. It is acid insoluble fraction. Together with polysaccharides and polypeptides. These comprises two macromolecular fraction. Nucleotide is the building block. न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. फिर इनके तीन कंपोनेंट्स होते हैं. पहला जो होता है वो है
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फिर दूसरा है मोनोसेकेराइड्स, फिर तीसरा है फॉस्फोरिक या फिर फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। जो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं। दीज आर द नाइट्रोजीनस बेसिस। लाइक एडेनिन, guanine, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमीन। जो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, ये दोनों सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स होते हैं, और ये बचे हुए सब्स्टिट्यूटेड पायरीनिडीन्स होते हैं। ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये हम लोग करेंगे अपने अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।